Uh, Good evening, ladies and gentlemen. Good On evening, sir. behalf of yes, on behalf of Good evening, sir. yes, good evening, good evening. On behalf of NKCL EduTech Private Limited and Vision Academy Mangalore, I heartily welcome you all to this national level webinar. Before we start, myself, I am Harsha from Vision Academy in Mangalore, and I am uplinking from my place called Chikmagalur. ओके सो आप सबको अभी आज इस वेबिनार के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के वेबिनार में हम ये एडुटेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। पहले तो हमें आपका परिचय होना है, इसलिए आप whoever you all, we would be glad if you could present your name and your place, which place you are from, so that we'll have a cordial atmosphere. You can go into the chat box, and in the chat box, you can type, if you are new, you can type it as N and which place you are. So let's get to know each other before we start this webinar. आपका नाम, आपका कौन सी जगह से आप अपलिंक हो रहे हैं, और अगर आप नया वाला है तो एन लिख दीजिए। यस, ठीक है। मैं पहले तो मीना फ्रॉम कोलकाता और पीयूष ठाकुर फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है सबको, स्वागत है। और यस, वी हैव सो वन पर्सन फ्रॉम बैंगलोर, देन वी हैव मिस्टर कृष्णमूर्ति फ्रॉम शिवमोगा, we have Santosh Guram from Mumbai, Shweta from Bangalore. Welcome all of you all. Anand Rao Ani from Karad. Yes, we have another person named Sachin Patil, Sri from Bangalore. Yes, Nabi Shah from Bagalkot, Soumya Raj from Agratala, Gunavati from Mangalore, Jyoti Ravi from Mangalore. Yes, Meera Suryavamshi from Jafrabad. It's very nice all over India. This is a national level quiz session, and we have so many people from Mumbai, Shweta from Bangalore, and Ashok Gaikwad. Yes, there are plenty of names. Jayant Dawood from Dharwad, Jawar Jain Delhi. Yes, we have Flavia from Mangalore, Sachin Giri from yes, Karanja. Yes, then we have got some people from Bhatkal. Welcome, welcome all of you all. Yes, it is so nice to see you all in this session, and we are here to learn something very new. We also have somebody from Goa and from Tripura. Yes, far away Tripura. It's very wonderful. Yes, welcome everybody to this session. So here, I again once again आप सबके लिए सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। और today's session, it will be both in English as well as Hindi, because we are a little South Indian. So South Indian, there'll be a little bit of mistakes, Hindi mistakes. So we'll be taking it into English and Hindi. Okay, fine. Right. Today's session, it is about the education industry plus direct selling and the future business model. So we are here in this thing because education is the fastest growing platform where there's an ever growing demand in this industry. Okay, so it's a very powerful platform where you can impact the students. You're all aware that we are impacting the students and trying to build a great future for them. So this is where we are all here. And firstly, all the newcomers, I would like you all to thank your people who have introduced you. Somebody has asked you to join this Zoom. So please thank them, because today a great opportunity is knocking at your door. And definitely, if you can accept this, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा. So this is one thing where you are here, and we will go into this session. We are into direct selling, where your income is great. You have got a very great unlimited. You can also be a part of the future of education, क्योंकि एजुकेशन सबको लिए चाहिए. तो अभी एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें इनकम का भी जनरेशन हो सकते हैं. इनकम कैसे होते हैं इसके बारे में आप सब डिस्कशन कर सकते हैं इसमें. सो नाउ here we have to discuss. We have a presenter. Actually, I'm not the presenter, so I would like to present you a very great personality.
and this person has been a professor in an engineering college, and she's a lady. And I would like to also present you that she's a feather in the cap of our Vision Academy as well as EduTech, because she's the first lady to have achieved the 30,000 capping in EduTech. And this lady, she has got her own travel business, and she's having a passion for teaching. Because of that, she has come into this into EduTech, and today she is a national level presenter, and her presentation is so dynamic and so professional that all of you will really love it. So this person is none other than Professor Smita Hegde, and she is from Shirsi, and she is also one of the core cabinet members of Vision Academy. And this person is one of my leader also, and today she'll be presenting you regarding our EduTech business and how it will be helpful for all of you all in your future life. So over to you. Thank you for this opportunity. Over to you, Smita madam. Please handle the session from now on. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the nice introduction. Hi, friends. Good evening. Good evening, everyone. सब कैसे हो? Good evening, ma'am. Yes. Fine, ma'am. Fine. Yes. Good evening, Good evening, ma'am. ma'am. Good Hi, evening. ma'am. evening, Good fine. evening, Good ma'am. evening. Good evening, madam. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. So, on behalf of EduTech, आप सबका स्वागत है आज शाम का सेशन के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है. Just a minute, I'll unmute everyone. सो आज का शाम का सेशन है वेबिनार के लिए आप सबके लिए हार्दिक स्वागत है एंड थैंक यू. आपने जो अपना टाइम दे के आज का ये वेबिनार में बैठे हैं. आज के सेमिनार में कुछ नए लोग भी होंगे या ऑलरेडी एडुटेक से जुड़े हुए हैं वो भी होंगे. जो भी नए हैं वो पहली बार ये जूम अगर अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा चैट बॉक्स में न्यू या एन करके लिखिए. आज जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम के लिए एडुटेक का जूम के लिए जस्ट टाइप इट एज एन, ताकि मुझे समझ में आएगा मतलब कितना नए लोग हैं कितना एग्जिस्टिंग लोग हैं उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन जा सकता है. इसीलिए yes, many people are new. Yes, Thakur, Piyush, many people are new. Yes, thank you. So जो भी नए हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम लोगों को जहाँ पे लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो आज का सेशन में देखेंगे एडुटेक कैसे हेल्प करता है, इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके कैसे लेना है. अगर हम लोग इसका एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं तो देन व्हाट ऑल वी कैन अर्न फ्रॉम दिस, तो व्हाट ऑल बेनिफिट हम लोगों को इससे मिलेगा. सो आज का जो सेशन है इंग्लिश और हिंदी थोड़ा मिक्स में रहेगा. सो एज हर्षा सर टोल्ड, क्योंकि हम लोग को क्या है कि हिंदी उतना फ्लुएंटली नहीं आता है तो बीच बीच में इंग्लिश भी कंबाइन करते रहूंगी. हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स में रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द डे. ओके. On behalf of EduTech Business Academy and EduTech Learning, so आज का जो शाम का सेशन है आपका स्वागत है एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. तो आज का सेशन में हम लोग क्या है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फील्ड और डायरेक्ट सेलिंग, इसमें क्या हम लोगों का फ्यूचर है, व्हाट ऑल वी कैन गेट, मतलब ये अभी एजुकेशन के लिए क्या डिमांड है, हम लोग क्या कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में एडुटेक कैसे काम करता है. अगर हम लोग इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं तो व्हाट ऑल बेनिफिट्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस, ये सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं. यस, ओके. सो व्हाट इज दिस एडुटेक? सो एडुटेक एक ऐसा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, एक नया तरीके का टीचिंग मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया है. इसको हम लोग बोलते हैं फिजिटल टेक्नोलॉजी. सो फिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी आज का हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है मतलब जो बुक रीडिंग है फिजिकल बुक्स है
उसको जो एजुकेशन हम लोग इतने साल तक करते आए हैं उसको हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक एजुकेशन, नया एजुकेशन लेके आए हैं। ये क्या होता है, बच्चे लोगों को, मे बी स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे हो, उन लोगों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। और साथ ही साथ में अगर हर कोई इंडिविजुअल अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है, जैसे उसका कंप्यूटर स्किल्स डेवलप करना चाहता है या वोकेबलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, नहीं तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, उसके लिए भी ये हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ हम लोगों को एक अच्छा इनकम बनाने के लिए या हमारा फ्यूचर अगर सिक्योर करने का है, इसके लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से इधर हम लोग काम करता है। एंड हम लोग आज क्यों हैं इधर? सो मेनली वी आर हियर। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, एडुटेक मतलब क्या है, एडुटेक का प्रोजेक्ट या पैकेजेस कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ अगर मैं इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेती हूँ तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी वी आर हैविंग। ये एक ऐसा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको एक बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेते हो, आपके लिए आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कंपनी से मिलेगा। जैसे आज का सेशन वैसा ही है, सपोर्टिंग फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। तो ये जो भी एजुकेशन का सेक्टर है, इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ इसके लिए, क्योंकि हर दिन बच्चा पैदा होता जाता है एंड एवरी डे दे नीड द एजुकेशन। तो पहले एजुकेशन के लिए जो लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन आजकल क्या है कि एजुकेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, बहुत कोर्सेस भी आए हैं बच्चे लोगों को। उसके साथ ही साथ बच्चे लोगों का स्ट्रेस का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग इधर क्या करते हैं, जो नया एजुकेशन है उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके कैसे इजीली पढ़ाई करने का, उसके बारे में एक सोल्यूशन लेके आए हैं। साथ ही साथ में एक वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आज आपके सामने है। सो दोस्तों, आज के शाम का जो भी सेशन है 9 o'clock तक चलेगा। एंड तक बैठे रहिए, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है हम लोगों को, ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं करके बोल रही हूँ, कौन कौन ले सकता है? सो एनी हाउसवाइफ भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके कर सकते हैं, या तो कोई अगर ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहा है वो भी अपने जॉब के साथ ही साथ इसको लेके एक अपॉर्चुनिटी लेके बिजनेस कर सकते हैं। अगर कुछ कॉलेज में स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, दोज पीपल ऑल्सो टेक द एडवांटेजेस। अगर कोई एंटरप्रेन्योर से, मे बी वुमन एंटरप्रेन्योर हो, मैन एंटरप्रेन्योर, आप खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो अपने काम के साथ ही साथ इसको भी एक अपॉर्चुनिटी करके ले सकते हैं। एंड इफ यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, अगर आप काम करते थे अभी रिटायर्ड हो, लेकिन आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए, देन दोज पीपल ऑल्सो कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब हर एक एज के 16 years के अब जो भी है, हर एक अगर इधर अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है। तो ये एडुटेक या एडुटेक बिजनेस एकेडमी और एडुटेक क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन है, ऐसे बोलने का है तो सो व्हाट आई टेल इज वी आर द चेंज मेकर्स। तो हम लोग अभी 4 साल हुआ कंपनी स्टार्ट होके। सो 4 साल में बहुत सारे चेंजेस हम लोग लेके आए। सो वी प्राउडली टेल दैट वी आर द चेंज मेकर्स। सो वी हैव ब्रॉट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर करके बोल सकते हैं। मतलब क्या चेंजेस लेके आए, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। इधर पेरेंट्स और बच्चे बहुत टेंशन में हैं, उसके स्टडीज के बारे में टेंशन में है। एंड द फादर इज वेरी मच टेंस्ड, ही इज स्कोल्डिंग द सन, कैसे पढ़ना है, उसको मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे पढ़ाने का पता नहीं है। सो ऐसे जो भी फैमिलीज हैं, हम लोग उन लोग उसको एक हैप्पी फैमिली करके कन्वर्ट किए हैं। तो अभी 4 साल में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जो अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए टेंशन ले रहे थे, उन लोगों को हम उन लोगों ने एडुटेक के माध्यम से एक हैप्पी फैमिली करके कन्वर्ट किए। इन द सेम वे, जो भी बच्चे कुछ छोटे एरिया में या छोटे गांव में ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, तो उन लोगों के साथ एडिशनल स्किल्स नहीं रहता, इसीलिए उन लोगों को जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द सिटीज। तो उनके लिए भी एक अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी लेने के लिए उनका जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेस है वो लोग हम लोगों ने दिए है। तो जो गांव में पढ़े हैं वो लोग भी आज अच्छे अच्छे जॉब में लेके अच्छी सैलरी लेके अपना फ्यूचर बना रहे हैं।
इन द सेम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो एग्जाम के टाइम पे बहुत टेंशन्स लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसका मार्क्स नहीं आता, मतलब एग्जाम मतलब एक डर सब बच्चों के मन में बैठा जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर रिमूविंग दैट। तो एग्जाम मतलब द स्टूडेंट्स नीड नॉट वरी। तो हंसते खेलते एग्जाम्स कैसे लिखने का, विदाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री कैसे पढ़ाई करने का, स्ट्रेस फ्रीली कैसे स्कूल के लिए जाना है, तो एग्जाम फियर कैसे ओवरकम करना है, ये सब चेंजेस भी हम लोग लेके आए। जो भी बच्चा एडुटेक पैकेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो उन लोगों का क्या है कि एग्जाम्स का टेंशन हो या एग्जाम का स्ट्रेस हो, वो कुछ भी नहीं है। सो जस्ट कैजुअली लाइक हाउ दे आर डेली गोइंग फॉर द स्कूल, in the same with that cool mind only they are going for the exam hall also. This is what is the change we have brought from the edutech. और आगे बोलना है तो जो बच्चे लोग गांव में पढ़ते हैं उन लोगों को जो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग हर एक गांव तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाए हैं। तो उनके गांव में अच्छे स्कूल नहीं रहती है, या तो कुछ टीचर्स का फैसिलिटी नहीं रहता, ऐसे कुछ भी हो, नहीं तो पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच्चे लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो वैसे बच्चों को भी हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन दिया है। वैसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं उसका कुछ हेल्थ का इश्यू होता है तो उसको स्कूल जाने के लिए नहीं होता, क्लासेस मिस करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, वो क्लासेस मिस करते हैं तो उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, या तो फेल हो जाते हैं, नहीं तो एक ईयर ड्रॉप करके फिर अगले ईयर वो क्लास अटेंड करके क्लास लिखते हैं। तो हम लोग अभी एडुटेक से बिना एक ईयर लॉस किए, मतलब बिना ड्रॉप किए, बिना फेल हुए, अगर हेल्थ की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे तो भी वो लोग घर में कैसे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते। तो ये चेंजेस भी हम लोगों ने एडुटेक के द्वारा लेके आए हैं। वैसे जैसे बहुत सारे लेडीज रहते हैं जो हाउसवाइफ रहते हैं, उनको भी रहता है मुझे भी कुछ बनना है, कुछ काम करना है, लेकिन घर का परिस्थिति ऐसे होता है कि वो 9 to 5 जॉब के लिए नहीं जा सकते। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग एक एम्पावरमेंट को ऑप्शन दिए हैं, मतलब अपने टाइम के हिसाब से जब भी वो लोग फ्री रहते हैं, जब भी उन लोगों का घर का काम खत्म हो जाता है, अपना फ्री टाइम में खुद का एक बिजनेस करके they can also become a woman entrepreneur. This is also the one of the changes what edutech has brought in the society. वैसे ही कुछ लोग जॉब नहीं मिला करके टेंशन में रहते हैं, तो जॉब छोड़ो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो एडुटेक में, खुद का ये अपॉर्चुनिटी ले लो और स्टार्ट बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, खुद का एक इनकम स्टार्ट करो। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हम लोग एडुटेक भी ऑप्शन दे रहे हैं, या वो लोग खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो भी स्किल्स चाहिए वो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस भी हम लोग दिए। ये भी एक और चेंजेस है जो हम लोग एडुटेक से लेके आए हैं। वैसे ही हमारा एक और पैकेज है जो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज करके बोलते हैं, भगवत गीता करके। सो भगवत गीता पैकेज से हम लोग क्या किए, हर एक घर में जहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंसेस होते थे उसको हम लोगों ने हैप्पी फैमिली करके कन्वर्ट किए हैं। नहीं तो अभी आजकल हर एक के घर में क्या, हर एक गैजेट एडिक्टेड है, खुद अपना अपना गैजेट लेके बैठते हैं, एंड वहां से क्या होता है कि द फैमिली बॉन्डिंग दे आर नॉट हैविंग। बट विद द भगवत गीता पैकेज we have started to get the family bonding among the people also। ऐसे नॉट इन वन फील्ड, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग क्या किए कि एडुटेक से चेंजेस लेके आए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्राउडली बोलती हूँ, वी आर द चेंज मेकर्स। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी बच्चा अपना पढ़ाई करना चाहता है, अपना फ्यूचर ब्राइट बनना चाहता है, या एनी लेडी और जो भी हो, अगर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम देखना चाहते हैं, दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्फ फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, ये सब लोगों के लिए हम लोग एक ब्रिज के तरह काम करते हैं। जो अपना जो ड्रीम है वो अचीव करने के लिए एडुटेक एक ब्रिज के तरह काम करता है। स्पेशली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे लोगों को पढ़ाई है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो जो भी बच्चा फ्यूचर में मुझे ये बनना है, इतना मार्क्स करके आगे क्या बनना है वो सोचता है, उसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए, एजुकेशन का जो फाउंडेशन चाहिए, वो लोग हम लोग दे रहे हैं। तो मतलब हम लोग क्या करें, इतना सारे चेंजेस हम लोग कैसे लेके आए। तो बच्चे लोगों का यूजुअली कैसे रहता है, स्कूल में जाना मतलब स्कूल जाना एग्जाम लिखना, स्कूल जाना एग्जाम लिखना। तो उन लोगों का क्या होता है, एग्जाम लिखने का, पास होने का, उसी के लिए स्कूल जाते, मतलब टेस्ट टेकिंग। स्कूल जाते क्यों, एग्जाम लिखने के लिए और पास होके नेक्स्ट क्लास जाने के लिए। तो वैसे हर बच्चे सोचते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों का वो मेंटालिटी से निकाल के उन लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन
कन्वर्ट करते, मतलब हर एक जो भी उसका स्कूल का सब्जेक्ट है वो क्यों ऐसा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या है, दैट वो जो थिंकिंग का मेंटालिटी है। सिर्फ स्कूल जाने में एग्जाम लिख के पास होने के लिए स्कूल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट समझने के लिए स्कूल जाना है मुझे, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट पैक, हमारा पैकेज जो है वो हेल्प करता है। इन द सेम में जो भी कॉलेज का बच्चे, जैसे मैंने कहा, उन लोगों को अगर एडिशनल स्किल्स चाहिए, अगर अच्छी खासी जॉब चाहिए, अच्छी खासी सैलरी चाहिए, तो उन लोगों का स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस भी देते हैं, इसी इससे क्या होता है कि दे आर एलिजिबल टू गेट द मॉडर्न वर्क प्लेस। तो वैसे ही अभी क्या है, पहले तो ऐसा था कि हर किसी को इंग्लिश समझ में आने का या इंग्लिश बोलने के लिए आने का वैसे नहीं था, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हर एक जगह पे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी मीटिंग के लिए जाते हैं या बाहर बैंक के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर हम लोग को इंग्लिश बोलना सीखना है तो कैसे सीखना? सो अगर स्टूडेंट्स है, बच्चे लोग हैं, तो कुछ कोचिंग क्लासेस जाके सीख सकते हैं। बट इफ यू आर ऑफ द मिड एज, तो हम लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, क्या क्या करना है। तो इधर क्या है कि हम लोग घर बैठे बैठे अपना ये जो वोकेबलरी है, जो स्किल है, वो डेवलपमेंट करने के लिए भी हम लोगों ने पैकेजेस देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर कोई अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकता है, अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है, अपना टीम एक्सपांड कर सकता है। नहीं तो समझो, अभी हम लोग अपने मदर टंग के लैंग्वेज में स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन बच्चे लोगों तो मैक्सिमम पीपल इंग्लिश मीडियम में ही दाखलाती करते, तो उसका स्कूल जाते तो कैसे बात करने को वो नहीं आता। ये सब के लिए, हर एक पेरेंट के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए हम लोग क्या कि स्पीक विथ विन टॉक, जस्ट नॉट टॉकिंग लाइक दैट, वैसे बटलर इंग्लिश नहीं। सो करेक्टली कैसे बात करने का, उसके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, जो भगवत गीता हम लोग एक प्रमोट करते हैं, वो मैनुअल फॉर लाइफ करके बोलते। तो आजकल के जमाने में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं, लाइक डिप्रेशन हैंडलिंग हो, वर्क प्रेशर हैंडलिंग हो, छोटे छोटे बच्चे मार्क्स नहीं आए करके दे टेक द ड्रास्टिक स्टेप्स, या कुछ लोग बिजनेस में कुछ लॉस लॉस हो गया करके ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हैं। तो ये सब इमोशनल हैंडलिंग कैसे हैंडल करना है, एक अच्छी खासी जिंदगी कैसे जीने का, वो एक लाइफ का मैनुअल जो है भगवत गीता दे के हम लोग कर सकते हैं। तो विथ ऑल दीज पॉइंट्स, जो हम लोगों ने ये जो भी 4 साल में चेंजेस लेके आए हैं, मेनी पीपल आर बेनिफिटेड विद द चेंजेस। तो ये चेंजेस हम लोग कैसे लेके आए? तो जो भी बच्चे लोगों को हम, जैसे मैंने कहा, वो टेस्ट टेकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग कैसे लेके आए, मतलब फिजिकल टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, हम लोग क्या अप्लाई किए हैं इधर। तो यूजुअली साइंस क्या बोलता है, जब भी बच्चे लोगों को पढ़ना है तो एक ड्यूअल कोडिंग थियरी करके बोलते हैं, मतलब जो भी हमारे मेमोरी में ना, जो विजुअल मेमोरी और वर्बल मेमोरी करके दो रहता है। मतलब विजुअल मेमोरी मतलब जो हम लोग देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, जो पिक्चर्स देखते हैं, वो विजुअल मेमोरी है। जो वर्बल मेमोरी मतलब जो हम लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं, वो वर्बल मेमोरी है। लेकिन जब विजुअल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी दोनों को हम लोग जब मिलाते हैं, तब क्या होता है, बच्चे लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। ये मैं नहीं करी हूँ, वो साइंस बोलता है। मतलब हम लोग जो देखते हैं और जो सुनते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है। सो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल लर्निंग। तो जो साइंस बोलता है विद विजुअल मेमोरी और वर्बल मेमोरी, मतलब देखने का और सुनने का और पढ़ने का, ये सब मिला के हम लोग फिजिकल लर्निंग करके एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। दिस इज डिपेंडिंग ऑन अवर ब्रेन स्ट्रक्चर ओनली। और दूसरा क्या हम लोग अप्लाई किए, हम लोग क्या किए कि मेमोरी रिटेंशन, जैसे मैंने कहा, जो भी बच्चा, एडुटेक का बच्चा एग्जाम लिखने के लिए जाता है, उसको एग्जाम का फियर नहीं नहीं रहता, एग्जाम का टेंशन नहीं रहता। बच्चे लोगों के लिए एग्जाम के लिए टेंशन कब होता है, जो एग्जाम के दिन अगर उसको मुझे क्या याद है, मुझे क्या क्या याद नहीं है, अगर टफ क्वेश्चन आया तो क्या करूं, वो क्वेश्चन के लिए मुझे कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन याद नहीं आ रही, जब ये सारे थॉट्स आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का जो मेमोरी रिटेंशन है, मतलब जो भी वो लोग पढ़ते हैं, कैसे याद रखने का सिखाते हैं। तो जब बच्चे को जब कॉन्फिडेंस होता है, जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे पक्का याद रहेगा, तब उसको क्या है कि एग्जाम का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये मेमोरी रिटेंशन हम लोग कैसे करते हैं? तो साइंस का जो बच्चे लोगों का स्टडी क्या बोलता है, बच्चा जो भी पढ़ के सीखता है वो उसको 10% याद रहता है, जो सुनता है उसको 20% याद रहता है, और जो देख के पढ़ता है वो
उसको 30% याद रहता है। लेकिन अगर हम लोग ये कंबाइन करते हैं तो जो बच्चा देखता है और सुन के पढ़ता है वो 50 to 65% उसके मेमोरी में रह जाता है। तो दैट मीन्स दैट जो भी हम लोग जो ऑडियो विजुअल तो जो वीडियोस थे डिजिटल क्लासेस से हम लोग दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का मेमोरी पावर ज्यादा होता है। जो भी वो देखता है, जो भी सुनता है, वो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। सो ये वही बोलते हैं हम लोग, व्हेन द चिल्ड्रन सी द कॉन्सेप्ट and hear the explanation, learning becomes natural. So ये साइंस जैसे हम लोगों ने अप्लाई किया, जो ऑडियो विजुअल मतलब डिजिटल क्लासेस जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब वो कैसे देते हैं आगे मैं दिखाती हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन के द्वारा जो बच्चे लोगों को हम लोग पढ़ाई करवाते हैं, इससे क्या है कि बच्चे लोगों का मेमोरी का रिटेंशन पावर ज्यादा होता है। मतलब वो लोग जो भी पढ़ते हैं वो जल्दी भूल नहीं जाते। जब वो जल्दी भूल नहीं जाते, जब उसको याद रहता है, 100% उसका एग्जाम का टेंशन नहीं रहता। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई किए, मतलब ये हमारा जो फिजिटल है वो कैसे काम करता है। अभी समझो, इधर एक आदमी बाइक पे बैठा, उसको बाइक चलाना नहीं आता, स्टार्टिंग अभी सीख रहा है। तो देख सकते हो दोनों पांव नीचे रखे वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे बाइक को चला रहा है। तो थोड़ा जो चलाना सीखेगा तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा डर सा रहता है, तो फिर भी वो धीरे धीरे वो सीखेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद या कॉन्फिडेंटली वो बाइक राइड ना सीख कर सकता है ना। तो ये कैसे हुआ, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा। स्टार्टिंग में क्या वो कॉन्फिडेंस इनफ नहीं था, मुझे बाइक चलाना नहीं आता करके डर डर सा था, उसके डर डर जैसा बैठा था, इसीलिए वॉज वेरी कॉन्शियस। तो जब वो सीख लेता है पूरा, जब उसको पता चलता है कि हाँ बाइक राइडिंग कैसे करना है, तो विथ फुल कॉन्फिडेंस, अभी क्या है कि उसको बाइक राइडिंग पे ही कंसंट्रेशन देने का करके नहीं है, वो कुछ फोन पे बात करते हुए या किसी दूसरे से बात करते हुए या मन में कुछ सोचते हुए भी इजीली ड्राइव करके जाते हैं, क्योंकि क्या उसको क्या बाइक कैसे चलाने का वो समझ में आया। सो वैसे अगर हम लोग लेडीज का बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो समझो किसी को कुछ खाना बनाना नहीं आता, तो एक सिंपल सा डिश खाना बनाना सीख रहे हैं, तो एक ही डिश बनाने के लिए पूरा कंफ्यूजन कंफ्यूजन से सब्जी कैसे बनाने का, विथ टेंशन शी विल कुक। देन आफ्टर टाइम शी हैज टू कुक, मतलब और भी बहुत सारे पकवान बनाने हैं, तब भी क्या शी कुक्स विद द कंफ्यूजन ओनली। लेकिन जैसे जैसे वो काम करते जाएगी, जैसे खाना कैसे पकाने का, कितना नमक डालने का, कितना मिर्ची डालने का, जब उसको समझ में आता है, कितना भी डिश बनाने के लिए दो, विदाउट टेंशन शी कुक्स। क्यों? उसको मुझे कुकिंग करना आता है, आई नो एवरीथिंग। सो व्हेन शी फील्स दैट आई नो एवरीथिंग, वो जो भी बनाती है अच्छी बनाती है। इसका मेन रीजन है कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा, वो चीज के बारे में जब मुझे पूरी जानकारी मिलती है, कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा जब जानकारी मिलती है, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वैसे ही जैसे हमारा डे टू डे रूटीन में मैंने एक दो दर्जन का एग्जाम्पल करके दिया, इधर भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाते, तो बच्चे को क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाते। जब बच्चा हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखेगा, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, वो क्या बच्चे लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डिजिटल क्लासेस हम लोग देखते हैं, तो उधर वीडियो के द्वारा क्या करते हैं, वो जो भी कॉन्सेप्ट अपना स्कूल का बुक में पढ़ते हैं, तो वीडियो में विथ एनिमेशन विथ ग्राफिक्स वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वो वीडियो के द्वारा वो लोग देखते हैं। तो व्हेन दे सी इट, विजुअलाइज इट, उन लोगों को पूरा समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट हाँ ये ऐसा है। तब क्या होता है कि लर्निंग उन लोगों को इजी हो जाता है, फास्ट भी लर्न करते हैं, इंटरेस्टिंग भी बच्चे लोगों को हो जाता है। तो जब उसको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आता है, then he will have the confidence in him that I know this subject, I can handle this subject, I can answer this subject। तो तब क्या है, बाय डिफॉल्ट उसका जो भी एग्जाम का टेंशन है वो नहीं रहता। ऐसे ही मतलब ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, सो कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक लिए हैं, ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए हम लोग देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बिना रट्टा मारे कॉन्सेप्ट को समझ के वो अपना पढ़ाई कर सकता है। जैसे वो जो बाइक सीखने वाला है, वो बाइक सीख कुछ रट्टा मार के बाइक सीख सकते हैं क्या? नहीं ना। खाना बनाना है तो खाना कैसे बनाने का रट्टा मार के बना सकते हैं? नहीं।
तो उधर क्या होता है, हम लोग को सीखना होता है वो बैलेंसिंग कैसे करना, वो सीखना होता है। जब खाना के लिए किसके लिए कितने चीज डालना, वो सीखना होता है। सेम इन द वे विद द ऑडियो विजुअल वी मेक द अंडरस्टैंड, वी मेक द स्टूडेंट टू लर्न द कॉन्सेप्ट। जब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल जब ज्यादा हो जाता है, तो उसका जो ऑडियो विजुअल का साइंटिफिक हम लोगों ने बोला है, उससे मेमोरी का रिटेंशन भी रहेगा, कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा, वो अपना एकेडमिक कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। सो दिस इज हाउ एडुटेक इज हेल्पिंग द स्टूडेंट। मतलब ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने कहा फिजिकल टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अप्लाई किया, उसमें फिजिकल मतलब दो वर्ड है, फिजिकल एंड डिजिटल। सो फिजिकल मतलब जो हमारा नॉर्मल स्टडी एजुकेशन का मेथड है, बुक रीडिंग है, बुक राइडिंग है, वो बुक राइटिंग है, वो है फिजिकल। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल क्लासेस को कंबाइन करते हैं। क्यों डिजिटल क्लासेस को कंबाइन किए, ऑडियो विजुअल, क्योंकि ऑडियो विजुअल से रिटेंशन पावर ज्यादा होता है, बच्चे लोगों को मेमोरी रिटेंशन पावर ज्यादा होता है, बच्चे लोगों को इजीली हम लोग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी कैन एक्सप्लेन देम हाउ द कॉन्सेप्ट इज हैपनिंग। तो ये ऐप कैसे काम करता है, एक वीडियो देख के हम लोग समझ लेंगे। आइए समझते हैं एड्यूटेक बुक्स कैसे काम करते हैं। इस बुक में चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के सामने एक क्यूआर कोड है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन यानी सवाल के सामने भी एक क्यूआर कोड है। जब आप हमारे ऐप के जरिए इन यूनिक क्यूआर कोड्स को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट टीचर आपके सामने आएंगे जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ डिटेल में आपको वो अवधारणा समझाएंगे। To understand the second property, let me have a plane mirror with me, and I'm going to tilt this torch. So now, what we are going to do is, we are going to switch the torch once again. You just saw that when I switched the torch on, there was a beam of light which went in a particular direction, and it bounced back from the plane mirror, and this bouncing back of light is called as reflection of light. हमारी क्यूआर बुक्स में टेक्स्ट बुक के सभी प्रश्नों के हल वीडियो फॉर्मेट में हैं। इसी के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस यानी अतिरिक्त प्रश्न के आंसर्स भी हैं। हमारी बुक्स में आंसर्स लिखकर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। आप हमारे बुक्स कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा कभी भी किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच मिस नहीं करेगा। सो ये ऐसे जो फिजिकल बुक है और डिजिटल क्लासेस का कॉम्बिनेशन से हमारा जो भी एडुटेक का पैकेज है वो काम करता है। तो हम लोग इसके साथ ही साथ, वो तो हो गया कॉन्सेप्ट पढ़ाने का। अगला नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वी क्रिएट जीनियस। हम लोग बच्चे को जीनियस बनाते हैं। कैसे जीनियस बनाते हैं, समझो आपका एक कोई बाइक है या कार है, तो क्या करते हो, रेगुलरली कार लेने के बाद, बाइक लेने के बाद जैसे उसका सर्विसिंग होता है, तो रेगुलरली हम लोग सर्विसिंग करवाते हैं ना गाड़ी का। क्यों करवाते सर्विसिंग, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी बीच में रुके नहीं। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो सडन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक व्हीकल का सर्विसिंग जो रेगुलरली करवाते हैं। सर्विसिंग मतलब क्या करते हैं वो लोग, जब हम लोग सर्विसिंग के लिए देते हैं, पूरा एक बार चेक करते हैं, गाड़ी का हर एक पार्ट चेक करते हैं, ऑयल चेक करते हैं, हर एक नट बोल्ट पूरा चेक करते हैं, है ना। तो इसके वजह से क्या है, जब रेगुलर चेकिंग रहता है तो गाड़ी स्मूथ चलता है। इन द सेम में बच्चे लोगों को जब रेगुलर इवैल्यूएशन नहीं आता, मतलब बच्चे को जब समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या याद है, क्या याद नहीं है, तो पूरा जब कंफ्यूजन्स में रहता है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी का रेगुलर सर्विसिंग करवाने से गाड़ी स्मूथ रनिंग में चलता है, उसी तरह हम लोग हर एक बच्चे को अपना मिस्टेक्स हर दिन जब उसको चाहे तब खुद को टेस्ट करके अपना मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हम लोग फैसिलिटी देते हैं। वैसे ही बच्चे का कॉन्सेप्ट भी हम लोग
स्ट्रांग करवाते हैं। और जैसे कॉन्सेप्ट उसका स्ट्रांग होगा, बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इधर क्या, द मेन थिंग इज करेक्टिंग द मिस्टेक्स, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन करके बोलते हैं। जैसे बच्चा हर एक स्टेप में खुद को इवैल्यूएट करते जाएगा, तब क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने आप खुद को इवैल्यूएट किया है, मुझे ये सब्जेक्ट आ रहा है, मुझे इसके ऊपर डाउट है, इसके ऊपर डाउट नहीं है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चे को रेगुलरली अगर इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग दो तरीका अपनाते हैं। एक है रेगुलर असेसमेंट और दूसरा है क्विज। जो भी बच्चे खुद का असेसमेंट रेगुलरली करते हैं या जो भी ऑनलाइन क्विज हम लोग कंडक्ट करते हैं, इधर देख सकते हो बहुत बच्चे लोगों का फोटोज है जो क्विज में विन हुए हैं। तो रेगुलरली जैसे वो लोग क्विज में बैठ के खुद को इवैल्यूएट करके, जो भी बच्चा क्विज में विन होता है तो एक प्राइज मनी लेता जाता है, तो उसका जो स्टडीज का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ता है। मुझे ये पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये बर्डन है, वैसे फील नहीं होते। बच्चे लोग बहुत इजीली हंसते हंसते खेलते पढ़ने के लिए जाते हैं और एग्जाम का टेंशन भी नहीं रहता। ये हो गया क्विज। और असेसमेंट कैसे काम करता है, हम लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंट असेसमेंट। जैसे मैंने पहली बार कहा, करेक्टिंग द मिस्टेक्स इमीडिएटली। हम लोग कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैसे उसको करेक्ट करना है, हर एक चैप्टर के लिए जब भी हम लोग चाहते हैं खुद को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग ऑप्शन देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो भी हमारा रेगुलर असेसमेंट पार्ट है जो हमारे पैकेज के साथ बच्चे लोगों को देते हैं, वो कैसे काम करते हैं वीडियोस के द्वारा देखेंगे। हमारी क्यूआर बुक्स के हर चैप्टर के एंड में एक स्मार्ट असेसमेंट है जो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसे ये पता चलता है कि आपके बच्चे को चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। असेसमेंट सबमिट करने पर ये आपको बताता है कि कौन से आंसर्स सही हैं और कौन से गलत। हर गलत आंसर के बगल में एक व्यू ऑप्शन होता है, जिसे सिलेक्ट करने पर वो वीडियो खुलता है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसे देखकर आपका बच्चा अपनी गलतियां सुधार सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। मैं जानता हूं आप यही चाहते हैं। सो व्हाई वेट, गो फॉर एड्यूटेक बुक्स, क्योंकि एड्यूटेक क्यूआर बुक्स टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, गाइड एंड नोटबुक का कॉम्बिनेशन है जो कवर करता है टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चंस भी, वीडियो सॉल्यूशंस और असेसमेंट्स के साथ। तो अब आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स स्कोर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन, एड्यूटेक क्यूआर बुक्स। सो दिस इज हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को रेगुलरली इवैल्यूएट करने के लिए भी ऑप्शन देते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, अगर हम लोग बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे मॉनिटर करने का, हम लोग ऐप में बच्चे लोगों को मॉनिटर करने के लिए भी ऑप्शन देते हैं। हर एक चैप्टर में कितना वीडियोस है, कितने वीडियोस देखे हैं, कितने टाइम के लिए देखे हैं, एंड हाउ मेनी क्विज दे हैव अटेंडेड। तो क्विज में उन लोगों को कितना पॉइंट्स आया, कितना प्राइज मनी आया, क्या रैंक हम लोग वो लोग क्विज में लिए थे। तो जो भी हम लोग क्विज में कैश प्राइज करके देते हैं, कितना प्राइज मनी आया अब तक बच्चे लोगों को। अभी ऐसे एक स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया। सो बच्चे ने क्या क्विज का उसका बेस्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक, एंड दैट गर्ल शी हैज अर्न 2780 rupees in the as a cash prize with the quiz. सो दिस इज हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को एक गेम की तरह गेमिफाइंग द एजुकेशन करके बच्चे लोगों को एजुकेशन के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज जो है हम लोग बोलते हैं वी आर गिविंग एट द अफोर्डेबल प्राइस, मतलब हर एक बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। बच्चा अगर शायद गांव में हो या शहर में हो, और डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पेरेंट, वॉट एवर इट मे बी, each child should get the quality education. That is the main aim of the edutech. तो ऐसे क्या रेट में हम लोग हमारा पैकेज दे रहे हैं हम लोग। सो अगर हम लोग पैकेज कर लेते हैं तो 6 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड का जो पैकेज है वो 7,999 में आता है, जहाँ पे मैथ, साइंस और वैदिक मैथ्स का कोर्स आता है। इन द सेम में 9th और 10th का आता है 14,999। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दिन का मैक्सिमम 15-20 रुपए लगेगा इतना क्वालिटी एजुकेशन के लिए, विद द सेल्फ इवैल्यूएशन, टेस्टिंग, क्विज, बुक, डिजिटल क्लासेस सब मिला के।
इन द सेम वे वी आर हैविंग फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड का भी है, महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का कोर्सेस है, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का कोर्सेस है, मराठी मीडियम का भी कोर्सेस है, अब वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट का सेमी इंग्लिश मीडियम का भी कोर्सेस हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, जो भी स्किल डेवलपमेंट हम लोग टेक्निकल एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए देते हैं, ये हर कोई यूज कर सकता है, स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, या कोई पेरेंट हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या कोई बिजनेस करने वाला हो, एनीवन कैन मेक यूज ऑफ दिस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस। ये कोर्सेस जो भी है ओपन टू ऑल है। तो ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स में हम लोगों को तो टोटल 4 तरीके का कोर्स आता है। एक स्पोकन इंग्लिश है, MS ऑफिस है, एडवांस एक्सेल एंड भगवत गीता। स्पोकन इंग्लिश और MS ऑफिस जो भी हमारा फिजिकल कोर्स है, उसके साथ ही साथ उन लोग स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट के लिए 10 डिजिटल कोर्सेस भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो ये जो भी भगवत गीता कोर्स हम लोग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं भगवत गीता फॉर ऑल, कोर्स करके ही बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे क्या है कि हम लोग मैनुअल फॉर लाइफ बोलते हैं, मतलब हाउ वी हैव टू लीव अवर लाइफ, हाउ वी हैव टू हैंडल अवर इमोशंस, हाउ वी हैव टू बिहेव इन आवर एनवायरमेंट, ये सब के लिए हम लोग यहाँ पे लेसन्स देते हैं करंट डे का एग्जाम्पल्स देके। ये जो भी हमारा भगवत गीता का पैकेज है, ऑलरेडी जो भी यूज किए हैं या जो भी इन लोगों का लाभ ले रहे हैं, सबका फोटोज में इधर है, किसी का भी मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब लोगों को आप जानते हो। सो दीज ऑल आर पीपल आर दे आर एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट ऑफ द भगवत गीता। अभी यहाँ तक हो गया पैकेजेस। सो आई होप सबको ये जो भी एजुकेशन पैकेजेस, जैसे मैंने कहा हम लोग कैसे चेंजेस ला रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं बच्चे लोगों में, आई थिंक होप सबको समझ में आया करके लगता है, जैसे लगा। सो कैन यू थिंक दैट ये जो भी पैकेजेस मैंने कहा, जैसे मैंने कहा वी आर द चेंज मेकर्स, तो चेंज मेकर्स हम लोग कैसे कर रहे हैं, विथ बाई हैविंग द साइंटिफिक रीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड जो लंबे समय तक बच्चे लोगों को याद रहने का रिटेंशन, वो सब साइंटिफिकल रीजन देख के ही हम लोग ये पैकेजेस बनाए। इसके वजह से ही 4 साल में ये पैकेजेस को इतना सक्सेस हम लोगों को मिला है। अगर आप सब लोगों को ये पैकेज अच्छा लगा, इट्स गुड करके लगा, या ये बच्चे लोगों को हेल्प होगा करके लगा, तो चैट बॉक्स में यस करके टाइप कीजिए। इफ यू रियली फील दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, चैट बॉक्स में यस करके टाइप कीजिए। यस, बहुत लोगों का यस आ रहा है, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। अभी आगे आते हैं हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये तो हो गया, क्योंकि अगर कुछ भी हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, पहले वो पता चलना चाहिए, बाद में हम लोग जाते हैं बिजनेस के लिए। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एडुटेक ने हम लोग को बिजनेस प्लान दिया है। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस प्लान। ये जो भी हमारा बिजनेस प्लान है, इट वर्क्स विद द डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या आता है, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अगर कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहेगा, रिस्क भी 0% रिस्क करके बोल सकता है। तो ग्रोथ के लिए कुछ लिमिटेड नहीं है, जितना काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, उतना कमाई कर सकते हैं। एंड इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, हर कोई इसका एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके ले सकता है। एंड इधर जैसे हमारा टीम बढ़ेगा, वैसे इनकम बढ़ेगा। अगर कुछ बिजनेस को हम लोग को बढ़ाना है तो उधर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है विथ लो इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम टीम वर्क, वी कैन अर्न मैक्सिमम। तो ये क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टली बोलते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, इन द सेम वे डायरेक्ट सेलिंग बढ़ाना है तो हम लोग को टीम वर्क चाहिए। विद द टीम वर्क वी कैन ग्रो एंड वी कैन गेट द वेरी गुड इनकम। तो कंपनी क्या करता है, हम लोग को 2 तरीके का इनकम देता है, एक है इंस्टेंट इनकम एंड एक है मंथली इनकम। सो इंस्टेंट इनकम में टोटली वी आर गेटिंग 3 टाइप्स ऑफ इनकम, और मंथली इनकम में भी हम लोगों को 3 तरीके का इनकम मिल रहा है। तो इंस्टेंट इनकम में 3 तरीके का इनकम्स है। फर्स्ट है रेफरल इनकम, दूसरा है पेयर इनकम एंड थर्ड वन इज रैंक एंड रिवॉर्ड्स। ये जो भी रेफरल इनकम है, सिर्फ इस इनकम में दिन के लिए हम लोग 500 से लेके अनलिमिटेड कितना भी चाहिए उतना इनकम हम लोग रेफरल में देख सकते हैं। मतलब कितना हमारा खुद सेल करेंगे उसके हिसाब से हम लोग को अनलिमिटेड इनकम हम लोग इधर ले सकते हैं। एंड सेकेंड आता है पेयर इनकम। पेयर इनकम में भी दिन में 1000 से लेके 30,000 पर डे तक हम लोग ले सकते हैं। एंड थर्ड वन इज रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। ये इनकम में हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 टू हम लोग 4.2 करोड़ तक भी इनकम ले सकते हैं। इधर कोई टाइम का लिमिट नहीं है।
तो जितना फास्ट हम लोग काम करेंगे, जितना सेल्स करेंगे, कितना हमारा पॉइंट्स बढ़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग को ये इनकम मिलेगा। ये तीनों जो है इंस्टेंट इनकम है। जैसे द मोमेंट वी अचीव इट, द मोमेंट वी डू द वर्क, द मोमेंट वी कंप्लीट द वर्क, हम लोगों के वैलेट में विद इन हाफ एन आवर में इमीडिएटली इनकम जो है वो आ जाता है। सो इसके लिए हम लोग इनकम के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे देखो, हर एक बिजनेस को हम लोग, कुछ बिजनेस को टर्नओवर से मेजर करते हैं, कुछ बिजनेस को मतलब लीटर क्वांटिटी से मेजर करते हैं, कुछ बिजनेस को केजी के वजह से मेजर करते हैं, कुछ बिजनेस तो वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करते हैं। इधर क्या है कि जो भी एडुटेक का हमारा बिजनेस है उसको हम लोग बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को रेट्स दिखाया है, जो भी 7,999 या 12,999 का पैकेज हम लोग बेचते हैं तो हमारे अकाउंट में 100 बीवी ऐड हो जाता है। एंड इन द सेम में द पैकेज कॉस्टिंग 14,999 एक सेल करते हैं तो हमारे अकाउंट में 200 पॉइंट्स ऐड होते हैं। मतलब जितना हम लोग सेल करते जाएंगे उतना पॉइंट्स हमारे अकाउंट्स के अंदर इधर ऐड होता जाएगा। और सबको पता लगेगा, जैसे आप मेड प्लस या ओपोलो या मोर, रिलायंस, कुछ सुपरमार्केट के लिए जाते तो वो लोग बोलते हैं पॉइंट्स ऐड हुआ है, आपका पॉइंट्स ऐड हुआ है, आप रिडीम कर सकते हो करके। इन द सेम वे कितना सेल होता है हमारा, उसके हिसाब से ये पॉइंट्स जो है हमारे अकाउंट्स में ऐड होता जाता है। तो इंस्टेंट इनकम में पहला वाला इनकम है, जैसे मैंने कहा, दिन के लिए आप लोग 500 से लेके कितना भी अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो, ये है रेफरल इनकम। सो इधर क्या है कि जो भी हमारा 100 पॉइंट्स वाला पैकेज है, अगर हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, द मोमेंट हम लोग उसको ऑर्डर प्लेस करते ही हमारा वैलेट में 500 रुपये आ जाता है। तो इधर डिलीवरी डे लेके हम लोग को जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू वेट टिल द प्रोडक्ट अराइव्स टू द कस्टमर ऑल्सो। द मोमेंट ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड, हमारे वैलेट में आधे घंटे में आ जाएगा। वैसे ही 200 बीवी का कुछ भी पैकेज हम लोग सेल करते हैं तो विद इन हाफ एन आवर में हमारे वैलेट में 1,000 रुपीज आ जाता है। इन द सेम में जो लाइफ का मैनुअल है भगवत गीता फॉर ऑल, अगर उसको हम लोग एक भगवत गीता प्रोमोट करते हैं तो विद इन हाफ एन आवर हमारे वैलेट में 2,500 अमाउंट आ जाता है। इसमें इतना ही दिन दिन के लिए इतना करके लिमिट नहीं है। दिन में आप कितना प्रमोट करते हो, कितना ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके हिसाब से कौन सा पैकेज आपने प्रमोट किया है, आपके वैलेट में 500, 1,000, 2,500 ऐसे ऐड होता जाएगा। ये हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो कुछ कंपनी में TADA करके देते हैं। मतलब हम लोग गए, कुछ एग्जाम उसको एक्सप्लेन करने के लिए गए, ऑटो में गए या बस में गए, कार लेके गए, बाइक में गए, पेट्रोल का खर्चा हुआ, वो सब जो भी खर्चा है हम लोग को इसमें आ जाता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इनकम व्हाट वी टोल्ड, उसके लिए क्या है कि उससे पहले हम लोग को समझना है पेयर मैचिंग इनकम। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस करना चाहती हूँ तो पहले वी हैव टू जॉइन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। सो आप 100 पॉइंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन हो सकते हो या 200 पॉइंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन हो सकते हो। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग एज अ 100 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर, per day in the pair matching income, only in the pair matching income we can get only up to 10,000. And if you are joining as a 200 point distributor, then per day you can get 30,000. And if you are joining with the Bhagavad Gita package, even though 100 BVA, you are eligible to get the 30,000 rupees per day. मतलब 30,000 रुपीज पर डे, मतलब महीने के लिए कितना हो गया, 9 लाख रुपीज पर मंथ हो गया। ठीक है। सो एक दिन के लिए हम लोग 1,000 से 10,000 या 1,000 से 30,000 तक कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर ज्वाइनिंग एज अ 100 BV डिस्ट्रीब्यूटर और यू आर ज्वाइनिंग एज अ 200 BV डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये कैसे चलता है दूसरा इनकम। सो ये भी इंस्टेंट इनकम है, इसको हम लोग ग्रुप मैचिंग इनकम या ग्रुप मैचिंग बोनस करके बोलते हैं। जैसे ही 100 BV वाला पैकेज, कोई भी पैकेज हो, एक पेयर सेल होता है। मतलब हम लोग जब भी सेल डालना है तो लेफ्ट और राइट करके डालते हैं। जैसे हम लोग कान का लेते हैं तो लेफ्ट राइट लेते हैं ना, वैसे। सो जब भी सेल डालना है आप में, एक लेफ्ट में सेल एक राइट में सेल डालते हैं। जैसे लेफ्ट और राइट मैच हो जाता है, अगर 100 BV का मैच होता है तो हम लोग को 1,000 रुपीज मिलेगा। इन द सेम वे 200 BV का मैचिंग हो जाता है तो हम लोग को 2,000 मिलेगा। तो इधर महीने में दिन में हम लोग कितना काम करते हैं, महीने में कितना सेल होता है, उसके हिसाब से हम लोगों को मैचिंग इनकम आता जाएगा। इट्स नॉट दैट ओनली द सेल यू हैव डन बाय यू, आपके नीचे जो टीम है, टीम का सेल भी यहाँ पे काउंट होता है। तो ये जस्ट लाइक जो महीने का हमारा घर का राशन का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, वो सबके लिए जो भी मैचिंग इनकम आता है उससे हम लोग घर संभाल सकते हैं। तो इधर क्या है, जैसे मैंने कहा 7,999 का एक पेयर होता है तो 1,000 रुपीज आता है। वही
मतलब वो 100 बीवी का है, 14399 का पैकेज मतलब 200 पॉइंट्स का है, 2000 आता है। अभी नहीं तो हम लोग क्या 100 बीवी का दो दो वैसे भी मैचिंग हो सकता है, ऐसे नहीं है कि एक ही तरीके का मैचिंग होना है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, जैसे ही हमारा लेफ्ट और राइट का सेल मैच होता जाता है हम लोगों को इनकम आता जाएगा। सेल आइदर यू डू बाय योर सेल्फ और बाय द टीम। सो ये इनकम में, ये सेकेंड वाला इनकम में यू हैव एन ऑप्शन टू अर्न अप टू 9 लाख रुपीज पर मंथ, मतलब हर दिन के लिए 30,000 आप लोग कमा सकते हो। जैसे अभी सर ने कहा, तो फर्स्ट लेडी जो मैं ही थी पूरा इंडिया में, मतलब जो 30,000 पर डे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि प्रूफ ऐसे तो बहुत सारे लोग हर दिन ले रहे। सो जैसे हमारा लेफ्ट और राइट में से सेल होता जाएगा, सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हेड काउंट्स आर देयर, तो जितना मैच होता जाएगा, जैसे ही मैच होगा हम लोगों को एक ग्रुप मैचिंग इनकम जो है हमारा वैलेट में आता जाएगा। ये भी इंस्टेंट इनकम है, विद इन हाफ एन आवर में हम लोगों को आएगा। मतलब मैं जो एडुटेक क्यों चुनने का है, डायरेक्ट सेलिंग में इसको क्यों चुनने का है, तो यहाँ पे है, अगर कोई ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपीरियंस है आपको पता लगेगा, इधर कोई लेवल का लिमिटेशन नहीं है मैचिंग के लिए, टाइम का लिमिटेशन नहीं है, हर महीना डायरेक्ट रेफरल करने का करके नहीं है। जैसे ज्वाइन होते हैं तो एक बार 2 डायरेक्ट रेफरल किया तो काफी है। एंड हर दिन का जो भी हमारा कैपिंग बीवी है, इट डिपेंड्स वेदर यू आर ज्वाइंड अस 100 बीवी डिस्ट्रीब्यूटर और 200 बीवी डिस्ट्रीब्यूटर। पैकेज को डिलीवरी देने का कोई टेंशन नहीं है, कंपनी से कस्टमर को डायरेक्ट पैकेज डिलीवरी जाएगा। कस्टमर से हम लोगों को पेमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ही खुद कंपनी को पे करेगा, कंपनी से उसको जो भी बुक्स है वो कंपनी से उसको डिलीवर होता है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं इस 0% रिस्क, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बुक पढ़ने की वजह से मेरा बेटा फेल हुआ और मेरे बेटे को ये हुआ वो हुआ रिएक्शन हुआ, वैसे नो टेंशन। सो इट इज 100%, कुछ भी रिस्क नहीं है हम लोग को। सो 0% रिस्क करके बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे QR कोड बुक किए हैं जो है कंपनी ने कॉपीराइट लिया, ए पेटेंटेड प्रोडक्ट है, कोई दूसरा कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे वाला एजुकेशन पैकेज लेके फ्यूचर में नहीं आ सकता। सो दैट इज द वन ऑफ द एडवांटेज फॉर अस टू डू विद द एडुटेक। और तीसरा टाइप का मंथली इनकम आता है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे मैंने कहा था टाइम का लिमिटेशन नहीं है, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न अप टू 4.2 करोड़। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे नीचे सेल होता जाता है, मतलब खुद का सेल हो या टीम का सेल हो, जैसे हमारा पॉइंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं, हमारा लेफ्ट और राइट में जब 2000 पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे तब हम लोग को रैंक दिया जाएगा स्टार। एंड बिकॉज यू हैव अचीव्ड द स्टार रैंक, आपको 2500 एज अ रिवॉर्ड अमाउंट मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट रैंक है एडवाइजर, एडवाइजर के लिए 5000 पॉइंट होना है। दोस्तों नया 5000 नहीं, स्टार में ऑलरेडी 2000 हो गया, एडिशनल 3000। जैसे उतना पॉइंट्स हमारा लेफ्ट और राइट में एक्यूमुलेट होंगे, हमारा रैंक होगा एडवाइजर, उसके लिए 4000 मिलेगा। जैसे ही हमारे नीचे सेल बढ़ता जाएगा, पॉइंट्स ऐड ऑन होते जाएंगे, हमारा रैंक बढ़ता जाएगा, रिवॉर्ड अमाउंट भी हम लोगों को आता रहेगा। इधर जस्ट मैंने 5 रिवॉर्ड्स का एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं ये पांचों रिवॉर्ड लेती हूँ तो ओवरऑल मुझे 51,500 रिवॉर्ड इनकम आएगा, अदर देन द फर्स्ट 2 इंस्टेंट इनकम व्हाट आई हैव टोल्ड। वैसे कंपनी में क्या है, टोटली 13 रैंक्स है। सो जितने फास्ट हम लोग 13th रैंक रीच करेंगे, हमारा जो रिवॉर्ड अमाउंट है वही 4.2 करोड़ आएगा। ये है कंपनी का डिफरेंट रैंक, जैसे स्टार, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, लास्ट 13th लेवल है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। सो जब हम लोग ये लेवल अचीव करेंगे, हमारा जो मैचिंग इनकम है, ये जो रिवॉर्ड इनकम है आपको स्क्रीन में दिखेगा। सो बाद में भी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कंपनी का इसमें भी आपको मिलेगा। ये जो भी ये रिवॉर्ड इनकम आता है हम लोग बोल सकते हैं हमारा बच्चे का एजुकेशन फंड के लिए करके हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि जैसे सेल आता जाता है, महीने का खर्चा तो ग्रुप मैचिंग में चला गया, ये जो इनकम आते हैं बगल में रखो, तो बच्चे लोगों को अगर पढ़ाई करवाने के लिए कुछ फीस के लिए चाहिए, अच्छी कॉलेज में दाखिलाती करवाना है तो ये काम आएगा। समझो अपने बच्चे लोग पूरा बड़े हो चुके हैं तो खुद के लिए रखो, कुछ घूमने के लिए, कुछ आपको कहीं पे जाने का है वैसा है, तो उसके लिए ये फंड हम लोग अलग से रख सकते हैं। अभी आएगा मंथली इनकम। सर मंथली इनकम में क्या है कि एक हम लोग बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट बोनस करके बोलते हैं। इधर क्या है, जैसे हम लोग हर एक रैंक रीच हो जाते हैं, हर एक रैंक के लिए एक टारगेट, महीने का एक टारगेट पीवी देते हैं।
अगर हमारे टीम से वो टारगेट हम लोग कंप्लीट करते हैं तो लेफ्ट और राइट में हम लोगों को 1% ऑफ द कंपनी का टर्नओवर लेके जो भी वो कैटेगरी में ईच कैटेगरी में उन लोगों को इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब कंपनी का मंथली टर्नओवर में 1% लेके कितने भी स्टार में टारगेट अचीव किए लोग हैं उन लोगों को इक्वली इट विल बी डिवाइडेड। अगेन द कंपनी विल टेक 1% ऑफ द टर्नओवर, it will be equally divided among advisor and senior advisor who have achieved the target. The same होगा regional advisor, zonal advisor के लिए। So this is just like one monthly income we are getting additional income। ये तो हम अपना एक सेविंग फंड करके रख सकते हैं। कुछ इमरजेंसी आया किसी कुछ कभी कभी चाहिए तो इमरजेंसी फंड रखने का जरूरत होती है, तो ऐसे जो भी हम लोग टारगेट कंपनी कंप्लीट करने से अमाउंट आते हैं वो अलग सा रखेंगे, हमारा एक सेविंग्स अमाउंट या इमरजेंसी फंड करके रख सकते हैं। तो मंथली इनकम में सेकेंड टाइप ऑफ इनकम है रॉयल्टी इनकम। जैसे जोनल एडवाइजर के बाद हमारा रैंक आएगा डायरेक्टर, नेक्स्ट आएगा रीजनल डायरेक्टर, नेक्स्ट आएगा जोनल डायरेक्टर। सो जैसे ए लेवल रीच हो जाएंगे हम लोग तो वहां पे भी हम लोगों का टारगेट रहेगा। अगर टीम से टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो 1%, 2% एंड 3% का जो भी कंपनी का मंथली टर्नओवर है वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो इनिशियल लेवल में क्या होता है, बहुत जन होते हैं तो जो भी हमारा पैसा आते हैं वो थोड़ा कम रहता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो वहां पे लोग कम होते हैं तो जो भी ये रॉयल्टी इनकम आएगा वो ज्यादा आएगा। सो हाउ फास्ट वी ग्रो, मतलब कितना फास्ट हम लोग सेल्स करते हैं टीम डेवलपमेंट करके, कितना फास्ट हम लोग सेल करते हैं, वैसे ही हम लोगों को ये पूरा जो मंथली इनकम है वो लेने के लिए हम लोग कैपेबल हो जाएंगे। ये जो भी रॉयल्टी इनकम आता है समझो अपना जो भी सपना है, एक घर बनाना है, नया गाड़ी खरीदना है या गोल्ड खरीदना है, कुछ भी द लग्जरी लाइफ व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ, उसके लिए हम लोग जो भी हमारा ड्रीम्स है उसके लिए यहाँ से जो भी पैसा आ सकता है हम लोग बिंदास यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है रिपर्चेस इनकम, ये भी मंथली इनकम है। जो भी कस्टमर नेक्स्ट टाइम लेता है, मतलब समझो अभी इस साल मैंने अपने मेरा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, मैंने लिया, मेरे बच्चे में इंप्रूवमेंट मैंने देखा तो अगेन आई विल बाई फॉर द 4th स्टैंडर्ड। सो व्हेन आई एम बाइंग फॉर द 4th स्टैंडर्ड अब क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ मुझे 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं हम लोगों को क्या करते हैं कंपनी, एक अदर क्या करते हैं, कंपनी का जो भी रिपर्चेस का टर्नओवर आता है उसमें से 40% अमाउंट निकालता है कंपनी। निकालने के बाद टोटल कितना रीपरचेस मैचिंग पेयर्स हुआ है वो काउंट करके हर एक पेयर के लिए कितना अमाउंट आएगा वो काउंट करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन मेरे नीचे कितना रीपरचेस हुआ है उसके हिसाब से मुझे अमाउंट आएगा। इधर एक रफ एग्जांपल दिया है मैंने जहाँ पे एक रीपरचेस पेयर के लिए लगभग 3000 आएगा समझो, यूजुअली इट कम्स मोर देन दैट बट हैव टेकन द लिस्ट। तो एक रीपरचेस पेयर के लिए अगर 3000 आता है तो समझो मिनिमम टू मिनिमम एक साल में मेरा नीचे अगर 300 लोग अगर रीपरचेस करते हैं तो ऑन द स्पॉट जैसे मुझे होगा वो 9 लाख रुपीस इनकम मिलेगा। समझो 1000 बच्चे अगर रिपर्चेस करते हैं तो हम लोग को 30 लाख रिपर्चेस इनकम मिलेगा। इधर क्या है, जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ता जाएगा रिपर्चेस भी बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा, रिपर्चेस इनकम बढ़ेगा। यहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, एक दिन में इतना ले सकते नहीं है, पॉइंट्स भी कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन जब दिसंबर आएगा अगर एक तरफ में मैचिंग नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ कंपनी में काम करते हैं तो दिसंबर आने तक जो लीव्स लैप्स हो जाते हैं, वैसे नहीं तो एवरी मंथ द रीपर्चेस पॉइंट ऑल्सो आर कैरी फॉरवर्ड एंड एज एंड व्हेन द मैचिंग आर डन यू आर गेटिंग द मंथली इनकम फॉर दिस। तो जैसे मैंने कहा जैसे कस्टमर डेटाबेस कैसे बढ़ेगा, इस साल मैंने 100 बच्चों को दिया, अगले साल टीम बढ़ेगा तो आई विल गिव फॉर 200 पीपल, नेक्स्ट ईयर आई विल गिव फॉर 300 पीपल। तो जब मैं 3rd ईयर के लिए जाऊंगी जो 1st ईयर और 2nd ईयर लिए थे वो लोग रीपर्चेस के लिए आएंगे, है ना। तो ये क्या है कि साल भर ऐसे बढ़ता जाएगा, ये हम लोग एक रिटायरमेंट इनकम करके बोल सकते हैं। हमारा रिटायरमेंट के लिए एक सिक्योरिटी इनकम होगा, जब काम कर सकते हैं काम करके रखो, टीम बना के रखो, जैसे रीपर्चेस आता जाएगा वो कस्टमर से एवरी ईयर वी विल बी गोइंग ऑन गेटिंग द प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ये पूरा इनकम लेना है तो पैकेज तो सब समझ में आया, सब लोग बोले अच्छा लगा, मैं बिजनेस में आया। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मार्केट में इसका डिमांड क्या है वो भी देखना पड़ता है ना। अभी समझो अभी मैं कीपैड फोन बेचने जाती हूँ तो मुझे बिजनेस नहीं होगा क्योंकि कीपैड फोन के लिए भी डिमांड है ही नहीं, हर एक के पास स्मार्टफोन है।
तो अगर ये टेक्नोलॉजी का एजुकेशन अगर मैं बेचना चाहती हूँ तो इसमें डिमांड क्या है, तो हम सब लोगों को पता है। तो अभी सभी लोग ट्रेडिशनल से डिजिटल एजुकेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। सो एवरीवन इज ऑप्टिंग फॉर द डिजिटल एजुकेशन। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, पूरा 100% इस पर डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट शेयर हमारा ही है। क्योंकि जैसे ऑलरेडी मैंने कहा, कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट के लिए कॉपीराइट लिया है, तो यही कॉन्सेप्ट से कुछ दूसरा कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट में नहीं आ सकता। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा हम लोग बेचने का है, तो वी आर द मोनोपोली, वी आर द सोलो डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसके लिए जो भी है प्रूफ जो है कंपनी का कॉपीराइट का जो है वो भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। तो विदाउट एनी डाउट हम लोग ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके कर सकते हैं। अगर इसको मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेके करना चाहती हूँ तो क्या सपोर्ट मिल रहा है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। सब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। जैसे मैंने कहा आज का जूम भी वैसा ही है, डिफरेंट बीओपी होगा, आपको एलडीपी होगा, आरटीपी ट्रेनिंग होगा, वर्कशॉप्स होगा, डोमेस्टिक टूर्स होंगे, इंटरनेशनल टूर होंगे, वैसे बहुत सारे ऑप्शंस कंपनी देती है। अभी फिलहाल तो एक मलेशिया का अचीवमेंट ऑलरेडी भी चल रहा है। तो ये पूरा ट्रेनिंग्स अटेंड करके यहाँ से जानकारी लेके हम लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है हम लोग इधर ले सकते हैं। अगर आप जो नए ज्वाइन हुए हो, अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब में पूरा एडुटेक का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कंपनी का तो यूट्यूब चैनल से आप जाके हमारा जो पढ़ाई का वीडियोस कैसे रहता है या बिजनेस प्लान में अगर आपको कुछ डाउट है तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। कंपनी का वेबसाइट है edu-tech.com करके, वहां पे जाके कंपनी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी को कितना अवार्ड मिला है, कंपनी का एमडी कौन है, पूरा डिटेल भी आप वहां पे वेबसाइट में जाके दे सकते हो। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट वेटिंग मेक्स इट हार्डर। अगर आप अभी तक एडुटेक में ज्वाइन नहीं हुए हो, नहीं तो ज्वाइन हो के अभी तक आप काम करना शुरू नहीं किए हो, तो यू विल बी इन द वेटिंग लिस्ट ओनली। जो भी काम करना चालू किए हैं बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे एंड एवरीवन इज गेटिंग द वेरी गुड इनकम। उसका मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ा है, मतलब बच्चे लोग हो, पेरेंट्स लोग हो, बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, अपना इनकम भी बहुत अच्छा आ रहा है, टीम भी बढ़ रहा है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हम लोग किसी के साथ भी जाके बोल सकते हैं। सो विथ एनीवन वी कैन गो एंड टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर पैकेज। सो इसीलिए अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हो या जुड़े हो लेकिन अभी तक एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, तो आप डोंट वेस्ट द टाइम। ओके, जो भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है तुरंत उसको कांटेक्ट करो, और भी जो भी ज्यादा जानकारी लेना है उनसे ले लो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट योर बिजनेस इमीडिएटली, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। सो लास्टली आई लाइक टू थैंक एवरीवन जो 1 घंटे से मेरा सेशन सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। होप ऑल द पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी जो नया ज्वाइन हुए हैं, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछने का, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो आपको जो भी डाउट है हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, नहीं तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। 1 या 2 डाउट क्लैरिफाएंगे, और भी ज्यादा आपका डाउट है तो आपको जिसने इनवाइट किया आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। या सो महेश सर थोड़ी ही सर डाउट, यस टेल मी सर। सर अनम्यूट एंड टॉक सर। Madam, good evening. गुड इवनिंग सर। Madam, actually, I have joined the packages, but already we met around 19 to 20 people, and most of the people are very much interested. And one query I'm getting, frequently, that everybody is asking about YouTube. Maybe we are getting so many videos about the science and mathematics and all. So how to clarify that with our product? यस, सो यूट्यूब में हर एक वीडियो मिलता है। द फर्स्ट पॉइंट इज यूट्यूब में जो भी वीडियोस डालते हैं, तो जो भी हर कोई अपना वीडियो बना के डाल सकते हैं, उधर एक चेकिंग या क्लैरिफिकेशन ऐसे कुछ नहीं रहता।
समझे। आप सब ओके देखते होंगे तो यूट्यूब में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको गाड़ी को डेंट लगा है, स्क्रैच लगा है, ऐसे ऐसे ये मिला के ऐसे रब करो क्लीन हो जाएगा, उधर उन लोगों को हो जाता है, हम लोग कितना भी ट्राई करें नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो ओके डालते हैं उसके लिए कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं है। तो जो भी हमारा वीडियोस हम लोग बनाते हैं, तो हमारा जो टीम है वो टीम में क्या है कि एजुकेशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, IITians है, हम लोग क्या करते हैं वो पूरा डिसाइड करते हैं, मतलब कैसे बनाना है, उसका सिलेबस कैसा है, 6th क्लास के बच्चे को कैसे सिखाने का, 10th क्लास बच्चे को कैसे सिखाने का, हाउ वी व्हाट एग्जांपल्स वी शुड गिव। सो प्रोफेशनली हम लोग डिजाइन करते हैं, हमारा जो भी क्लासेस हम लोग डिजाइन करते हैं, इट इज डिजाइन बाय द प्रोफेशनल्स, इट इज वेरीफाइड एंड इट इज एज पर द 100% सिलेबस ऑफ द पीपल ओनली। अगर वैसे यूट्यूब में सब मिलता है तो यूट्यूब में भी दिखाओ दो ना, स्कूल क्यों भेजते हो बच्चे लोगों को? यस Why एग्जैक्टली they are sending the school? Because in the school there the professional teachers are there, experienced teachers are there, they are teaching in a proper way, because of that only they are sending the school, no? In the same way जैसे स्कूल में प्रोफेशनल डेफिनेटली यस सिखाते यस हैं, वैसे ही हमारा वीडियोस भी प्रोफेशनल रहता है, आप ऐसे बोल सकते हो उसे। ओके ओके थैंक यू मैडम थैंक यू थैंक यू, वेरी मच थैंक यू सर। आई थिंक अगर किसी और को डाउट नहीं है करके लग रहा है मुझे। थैंक यू टीम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। ओवर टू हर्षद सर। यस, थैंक यू वेरी मच मैडम। दोस्तों, कैसे लगा था आपका ये अभी वेबिनार? आपका जो डाउट्स था वो भी क्लियर हो गया। मैं समझता हूँ कि वो भी क्लियर हो गया। तो आप एक काम करना है, जो भी आपको इनवाइट किया है उसे फिर से संपर्क कर दीजिए, और जो भी डाउट्स है उससे भी आप पूछ के डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी which your friends have provided to you for all the newcomers. So I would like you all to take advantage of this opportunity and spread the knowledge of edutech to all the students and benefit yourselves also, because your income can automatically go up. So thank you very much. I hope you had a very nice session, and we'll be ending this session now. Thank you, and good night, everybody. सर जी 1 मिनट चांस दे सकते हैं आप मुझे? हाँ बोलिए सर। बोलिए, बोलिए सर। क्या बहुत बढ़िया प्लान देते हो आप। मैं तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एजुटेक लोगों ने सर बात कर रहा हूँ, जैसा आप प्लान देते हो खुद के बच्चे और खुद की लाइफ में अपन क्या कर रहे हैं, ये ऐसा मैं मेरे टीम के अंदर, जैसा कि भगवत गीता और मेरे लीडर एक नंबर पर अभी है हरीश ग्रामकर सर और नीलेश केड़कर सर जी। जैसे कि अभी अभी आप इतना सबको बताते हैं, जो लोग ज्वाइन है ऑलरेडी वो लोग खुद समझते नहीं है एजुकेशन क्या है और भगवत गीता क्या है। खुद के अंदर जो कंपटीशन है, आप खुद के अंदर जागरूक करो और दूसरों को बताओ। जो अपन खुद कर रहे हैं 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। नीलेश केड़कर सर ने जी ने जो अपने को प्लेटफॉर्म दिया है, 4th एनिवर्सरी ये साल हो गई है अपना छोटा है भी एजुटेक। इतना ही बोलना चाहूंगा, जो लीडर है जो मेन लोग है खुद को समझ लीजिए। जीवन के अंदर ने अपनों अभी तक कुछ भी किया नहीं, 35 साल 38 साल 40 साल 50 साल ऐसा प्लेटफॉर्म मैडम अपने लाइफ में आए हुए हैं। और जो लोग लीडर है उन्होंने खुद समझना चाहिए कि बाल बच्चे के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एजुटेक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के अंदर जो कर सकता है दूसरा प्लेटफॉर्म कभी मिलेगा नहीं। इतना ही बोलना चाहूंगा मैम। ओके थैंक यू। छोटी यस मुंह सर। वर क्या बोलते हो, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं स्कूल पढ़ा हुआ नहीं, मुझे मेरा नाम खुद लिखते आता नहीं। सबको मालूम है जालना में हमारा प्रोग्राम हुआ कल 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 काल बोले तो कल ऐसा हुआ, और बहुत बड़े मेरी टीम बन गई और मेरा नाम एक से ऊपर एक आ रहा है। इतना ही बोलना चाहूंगा मैम। ओके थैंक यू। यस सर, थैंक यू। एडुटेक जैसे आपने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक नोबल कॉज भी है, साथ ही साथ हम लोगों का एक अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अगर एक ही साथ है तो एडुटेक में करके बोल सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा आते हैं हम लोग अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, दूसरों के बच्चे को भी हम लोग अच्छी जिंदगी दे रहे हैं यहाँ पे। सच्ची में नीलेश केड़ेकर सर को तो बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए, जो इतना अच्छा
कॉन्सेप्ट लेके आके हम लोगों को दिए हैं। Yes, ma'am. यस So thank you very much, everybody. I think we can end this session now with a good night. someone is asking company certificate। सर दिलीप सर, आपको जिसने भी इनवाइट किया है आप उन लोगों से पूछ लीजिए, नहीं तो कंपनी का जो भी वेबसाइट है आप उधर भी देख सकते हो। आप जो भी आपको इनवाइट किया आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको कंपनी का सर्टिफिकेट शेयर कर देंगे। Yes, sir. I think we can end the session now. यस सर। Thank you, ma'am. Good night, everybody. Good night. गुड नाइट। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू so मैम, much. थैंक यू वेरी मच। Thank हैव you, अ ma'am. गुड डे एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी अपना अपना एक ड्रीम लेके आए हो एडुटेक में, एंड आई प्रे टू गॉड दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू विद एडुटेक। Thank you, ma'am. Thank Thank you, ma'am. Thank you Thank so you. much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Prapti ma'am. How are you? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Abhishek,